In this video, we will discuss about structure of eukaryotic cells. Eukaryotic cells include all the plants, animals, protists, and fungi. Prokaryotic cells we have already discussed in detail in the previous lecture. So I'll share the video in the description box. Prokaryotes include bacteria and blue-green algae, and eukaryotes include all the plants, animals, protists, and fungi. Now, if we see the eukaryotic cells, plants and animals, mainly plant and animal cells, major difference between prokaryotes and eukaryotes is presence of nucleus. Here, this is well-defined nucleus is present in case of plant cell. Well-defined nucleus is present in case of animal cell. And this nucleus is also bounded by a membrane, right? So nuclear envelope. This is called as nuclear envelope. So these are characterized by presence of nucleus, like we can see here also. This is plant cell and this is the animal cell. They have nucleus which is also bounded by a covering, right? This is nucleus which is bounded by a covering. This is called as nuclear envelope. Now inside the nucleus are present chromosomes. DNA is organized in the form of chromosomes. So genetic material is organized in the form of chromosomes. First, we have discussed it is having nucleus, which is bounded by a nuclear envelope. Inside are present DNA, genetic material in the form of chromosomes. Another difference between plant cell and animal cell is plant cell is bounded by cell wall, right? So here we can see this is the plant cell which is bounded by cell wall. Inner to cell wall, this dotted we have shown here, this is the semi-permeable membrane and this is the nucleus. This will be cytoplasm, right? If you see the animal cell, this is bounded by a membrane. Cell wall is not present. This has then nucleus, right? Cell wall is not found in animal cell. This is bounded by a membrane, and plant cell, they are bounded by cell wall. So major difference between plant and animal cell. This is bounded by cell wall and this is having cell membrane. Another characteristic feature of eukaryotic cell is present of ATS ribosomes. Ribosomes are the cell organelles which help in protein synthesis. Now ATS ribosomes are there made up of 40S unit and 60S. S is sedimentation coefficient. What is sedimentation coefficient? This is based on the name of the scientist Sedberg. So Sedberg unit this is called. जैसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं मटेरियल को तो वो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है. सो उसका शेप एंड डेंसिटी क्या है राइबोसोम्स का, उसके मेयर पे हम बोलते हैं मेयर ऑफ सेडिमेंटेशन. सो दिस इज एस साइडबर्ग यूनिट, right, which determines shape and density of the ribosomes. So we can see here it is made up of two units. One is smaller, another is bigger. छोटे का है 40S और बड़े का है 60S. Together, when they come together, they become ATS. So ATS ribosomes are found both in plant and animal cell, right? One common feature, they are characterized by presence of nucleus. Nucleus is bounded by nuclear envelope. Inside nucleus are present chromatin threads in the form of chromosomes. Second similarity is present of ATS ribosomes. Then both have cytoskeletal and locomotory structures. जो साइटोप्लाज्म को सपोर्ट करता है प्रोटीन या एक्टिन फिलामेंट, जो उसको पूरा नेटवर्क उसका बनाने में मदद करता है, दैट इज़ कॉल्ड ए साइटोस्केलेटल. और जो लोकोमोशन में मदद करता है जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, उसको हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो वो दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटल एंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, राइट. तो ये सिमिलैरिटी हम डिस्कस कर रहे हैं. अब अगर हम एक प्लांट सेल देखें फिर ये दूसरा प्लांट सेल देखें, इनमें ऐसे कनेक्शन होता है जो इनकी कंटिन्यूशन को मेंटेन करता है. आगे ये अगला आ गया, ठीक है. तो इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. अभी हम डिस्कस भी करेंगे जो इनकी कंटिन्यूशन में मदद करता है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे इसमें ओपनिंग्स हैं, इनके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रेजेंट है यहाँ पर प्लांट सेल में, ठीक है. अब हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल इज़ बाउंडेड बाय सेल वॉल, राइट. तो ये है प्लांट सेल विच इज़ बाउंडेड बाय सेल वॉल. और बीच में हम ये देख रहे हैं ये जो ओपनिंग्स हैं, दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, राइट. If you see the structure of plant cell, now we have discussed this is bounded by cell wall,
ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज इन द सेंटर न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इनवेल्प। तो ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो राइबोसोमल आरएनए बनाने में भी मदद करता है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऐसे ऐसे इसमें पोर्स होते हैं जिसके साथ इसका साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन रहता है, ऐसे करके इन पोर्स के थ्रू इसका कनेक्शन रहता है। यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस और ये हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला पार्ट, ठीक है। Now there are other cell organelles like this is Golgi complex. We can see here. This is Golgi complex. This is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum दो तरह की होगी, एक endoplasmic reticulum without ribosomes, उसको बोलेंगे स्मूथ, एक जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे, रफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये न्यूक्लियस के साथ देखो ऐसे कनेक्टेड है पूरी, ठीक है। अब यहाँ से जो मटेरियल है बन के लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स गोल्जी बॉडीज ऐसे स्क्रीट करते हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्रीटरी वेसिकल्स। अनदर सेल ऑर्गेनेली इज माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ये क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ये भी मेजर डिफरेंस है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल, और उसकी वजह से सारे जो पौधे हैं देर ऑल ग्रीन इन कलर। एंड हियर वी कैन सी द वैक्यूल्स विच आर फिल्ड विद सेल सैप, और इनकी जो मेम्ब्रेन है उनको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ठीक है। अगेन आई विल रिपीट, प्लांट सेल इज बाउंडेड बाय सेल वॉल, ये ऐसे पूरा सेल वॉल है इसके आसपास, और यहाँ पर ये ओपनिंग है इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ये वाले जो एक सेल और दूसरे सेल में कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। देन इट इज़ हैविंग न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इनवेल्प, और जो इसका डीएनए है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। Then it has cell organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi bodies. Then we can see here there are two kind of endoplasmic reticulum. One is smooth without ribosome and other is with ribosome. अब राइबोसोम फ्री भी पड़े हैं यहाँ पर ऐसे, और राइबोसोम इसके साथ अटैच्ड भी हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, और गोल्जी बॉडी से ऐसे स्क्रीटरी वेसिकल्स बनते हैं जो बाद में मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच होकर उसको ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, राइट। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। अब हमने देखना है एनिमल सेल, ठीक है। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर हम डिफरेंस देखें, मेन डिफरेंस क्या है इसमें कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से प्लांट का ग्रीन कलर होता है। सेकेंड, इट हैज़ सेल वॉल। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगी, राइट। दिस इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, क्लियर। न्यूक्लियस है वही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम दो तरह के होंगे, फ्री राइबोसोम एंड जो इसके साथ अटैच्ड हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, और ये स्क्रीटरी वेसिकल्स जो भी हमने डिस्कस किया जिसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन भरे होते हैं, ठीक है। अनदर थिंग वी कैन सी हियर, मेम्ब्रेन इज लाइक दिस फोल्डेड, सो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अब अगर एक चीज़ ऐसे सीधी है, राइट, अब ये इसके ऐसे हो जाए तो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, और ये एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है माइक्रोविलाई। दिस इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, वी कैन सी हियर, राइट। यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं हम, डेस्मोसोम। अब ये दूसरे सेल के साथ इसका कनेक्शन बनाने में मदद करता है, डेस्मोसोम। सो दीज आर सेल टू सेल जंक्शन जो सेल को सपोर्ट भी करते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सिलिया है जो ब्लीफेरोप्लास्ट ग्रैन्यूल से बनते हैं, जो लोकोमोशन में मदद कर सकते हैं। हर एनिमल सेल में नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स दे मे हैव सिलिया, राइट, और ये अंदर तक जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज रूट ऑफ सिलियम। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये हमने देखा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, और इसमें एक और चीज़ है सेंट्रियोल। हम यहाँ देख रहे हैं ये सेंट्रियोल है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जब सेल डिवीजन होता है ना तो उसमें ऐसे स्पिंडल अपरेटस बनता है। these spindles or fibers are made up of proteins, right, which helps in attachment to the chromosomes. और यहाँ पर आप देखो मेम्ब्रेन ऐसे करके फिर है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरडिजिटेशन। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और ये इसमें मेम्ब्रेन है सिर्फ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है।
राइट। इसमें एडिशनल चीज़ क्या है, सेंट्रियोल्स हैं और इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं लाइक दिस। तो अब हम अगर डिफरेंसेस देखें प्लांट और एनिमल सेल में, तो मेजर डिफरेंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। यहाँ पर बाहर क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, राइट। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं है। सेंट्रियोल आर फाउंड इन द एनिमल सेल, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो यहाँ से हम फिर देखते हैं, राइट। सेंट्रियोल्स आर मोस्टली एब्सेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। और जो फूड का स्टोरेज है क्लोरोप्लास्ट है, इसमें स्टार्च होता है। और एनिमल सेल में क्या होगा, ग्लाइकोजन, राइट। तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स आर मोस्टली प्रेजेंट, हेल्प इन सेल डिविजन। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट। लाइसोसोम्स आर रेयर और एब्सेंट। लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, सुइसाइडल बैग्स भी बोलते हैं हम इनको। लाइसोसोम्स जो हैं दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल प्लांट सेल बट दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस लाइक गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब जो हैं दे आर फाउंड इन द प्लांट सेल प्लस क्लोरोप्लास्ट्स। और यहाँ पर अगर हम देखें, गोल्जी एपरेटस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इनवेल्प है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, वो वही सारा रहेगा, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ वन लार्ज सेंट्रल, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स, राइट। सेंट्रियोल्स नहीं होते, सेंट्रियोल्स होते हैं। फूड प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। लाइसोसोम्स दे आर रेयर और एब्सेंट, पर लाइसोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एंड डाइजेशन में मदद करते हैं। बाकी हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द सेल ऑर्गेनेलिस। सो हमने डिस्कस कर लिया व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल। हमने कहा जितने प्लांट, एनिमल सेल या प्रोटिस्ट या फंजाई हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोट्स के बारे में आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक वहाँ शेयर कर दूंगी, यू कैन सी द वीडियो। अब डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि उसमें क्या है, प्लांट सेल बाउंडेड बाय सेल वॉल, उसमें मेम्ब्रेन है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है। एनिमल सेल में नहीं है, इसमें फूड जो रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट सेल में स्टार्च है, उसमें क्या है, ग्लाइकोजन है। सेंट्रियोल्स का डिफरेंस है। तो दीज आर वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल, what is the structure and differences between plant and animal cell. If you have any question, please ask me in the comment box. Thank you for watching my video.